Bismillahirrahmanirrahim. Hey everyone, welcome to the fifth video of the Rust series. Today we will cover how we can manage our projects with packages, how we can create our own libraries, what are modules, what are grades. So let's get into it. Before moving forward, I think we should recap our last lectures. So I have refactored or I have arranged each lecture code into मैंने सारे कोड को एक एक लेक्चर के फोल्डर्स में कवर कर मूव कर दिया है तो एक एक प्रॉपर वे में इट इज अलाइंड एंड सेकेंडली लेट्स recap our lecture 4 last main.rs so in which we have reviewed how we can create structs enums and then we have covered how we can use control flow with enums and structs. So yeah, right here you can see we have used match, we have shared the exam, we have discussed about the approach we use in TypeScript and JavaScript, like with switch cases and enums, and we have compared it with Rust syntax. सो ये है कि हमने ऑप्शन इनम को देखा था कि ऑप्शन इनम किस तरह वर्क करते हैं रिजल्ट को कि रिजल्ट एरर हैंडलिंग में किस तरह यूज होते हैं वी हैव कंपेयर्ड इट विद जावास्क्रिप्ट दैट वी यूजुअली यूज लाइक ट्राई कैच सो हम ट्राई कैच यूज करते हैं तो उससे किस तरह सिमिलर है तो ऑलराइट सो लेट्स get back to our today's topic. Great. सो हमने लास्ट लेक्चर में लास्ट वीडियो में रिव्यू किया था कि क्रेट्स ये होते हैं कि काइंड ऑफ सिमिलर टू दी packages that we usually use in JavaScript or TypeScript. If we want to install, let's say, any dependency, it is usually called as library. कि अगर मुझे कोई लाइब्रेरी इंस्टॉल करनी है किसी भी रिलेटेड लेट्स से आई वांट टू इंस्टॉल टोस्ट लाइब्रेरी फॉर टोस्ट सो आई कैन इंस्टॉल लेट्स से रिएक्ट टोस्ट नोटिफाई जेएस और इस तरह की काफ़ी सारी लाइब्रेरीज है जो कि आई यूजुअली इंस्टॉल इट विद द कमांड npm I and let's say react hot toast सो इस तरह की काफ़ी सारी तरीके से हम क्या करते थे पैकेजेस को इंस्टॉल कर लेते थे एक और चीज़ होती थी package managers. What are package managers? It's kind of the, in simple words, the medium through which we install the packages. This is the simple example or simple wordings that I can use for the package managers. So let's say अगर pnpm हो गया, yarn हो गया, bun हो, sorry, npm हो गया. So these are the package managers to install any of the packages from in JavaScript or TypeScript. So let's say अगर मैं यहाँ पर आ जाऊँ और मैं हमारे let's say before moving forward let's install create a new project. Let's say cargo new and let's say lecture 5 or video 5 whatsoever. CD lecture 5 and yeah. So I have the lecture 5 in it. अच्छा लेक्चर 5 में मूव करने से पहले पूरा डिटेल में देखने से पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं कि हमें पैकेज का नेम पता चल गया ये पैकेज क्या चीज़ है भाई पैकेज क्यों आ रहा है इसके अंदर डिपेंडेंसीज क्यों बाय डिफ़ॉल्ट क्यों नहीं आ रही क्योंकि हमने तो रस्ट यूज़ कर रहे रस्ट में क्यों नहीं आ रही और ये सारी चीज़ें सो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा थ्योरी है तो हम ज़्यादा थ्योरी को कवर नहीं करेंगे मैं कोशिश ये करूँगा कि हैंड्स ऑन जितनी चीज़ें हो सके वो करें कि प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के थ्रू हम मॉड यूज़ करें काइंड ऑफ इम्पोर्ट थिंग इन जावास्क्रिप्ट और या सो लेट्स से अगर हम यहाँ पर आ जाएं सो दे आर टॉकिंग अ रिलेटेड कॉन्सेप्ट लेट्स स्टार्ट विद दिस एज यू राइट लार्ज प्रोग्राम्स organizing your code will become increasingly important because we usually take the approach or use the approach of reusability हम reusability और component driven development पे बिलीव करते हैं हम जो रिएक्ट में पढ़कर आए हैं सो हम अब इसी अप्रोच को फॉलो करते हुए कि हमारे जो लेट्स से अगर ऑथेंटिकेशन का कोड है तो वो एक ही फाइल में सारा कोड ना आ जाए कि साइन अप भी लॉगिन भी मॉडल्स भी वहीं डिफाइन हो रहे फॉर बैकएंड और हर चीज़ एक ही फाइल में आ रही है और हम उसको डिफरेंट फाइल्स में डिवाइड भी नहीं कर रहे सो ये कि लेट्स से लॉगिन फंक्शनलिटी शुड बी इन अ डिफरेंट फाइल authentication or let's say we we can separate out the models into a separate folder or files so this
These are the approaches that we usually follow in the programming, and these are the standards. All right, before moving forward, we have uh, there is an important thing that we should discuss. What is happening? All right. Yeah, right here. So Rust has a number of features that allow you to manage your code's organization, including which details are export, which details are private, and what names are in each scope in your programs. So ये रस में ये होता है कि आपकी कुछ चीज़ें प्राइवेट होती हैं, कुछ चीज़ें पब्लिक होती हैं, और उनको पब्लिक क्यों किया जाता है, प्राइवेट क्यों रखा जाता है, किस तरह प्राइवेट चीज़ों को एक्सेस किया जाता है दूसरी फाइल्स में, एंड सो ऑन सो फोर्थ. So there are four types of stuff or features: packages, crates, modules, and what are the packages? A cargo feature that lets you build, test, and share crates. Packages means uh, let's take an example of any package. We have, I guess, r- हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि हम कैसे बनाते हैं. लेट्स से आई क्रिएट creates.io slash, और मैं यहाँ पे आ जाता हूँ. रॉकेट रॉकेट इज a uh, package. Right now, let's consider it as a package. We will discuss what is rocket, what is axiom, what is Tokyo, and so on so forth. So this is a package. So how we can install a package? We use this command cargo add rocket, and it will install it in our uh, n- Rust project. So let's move on to the second feature, crates. A tree of modules that produces a library or executable. Crate क्या होता है कि आपकी लाइब्रेरी बना देता है और executable फाइल बना देता है. Executable file means the main file that we usually use for running our hello world code. Let's take an example. Modules and use. मॉड्यूल क्या होता है, यूज क्या होता है, ये अभी देख लेते हैं. पाथ क्या होता है कि किस तरह पाथ डिफाइन करके हम इंपोर्ट या एक्सपोर्ट कर लेते हैं. सो लेट्स मूव ऑन टू दी पैकेजेस एंड ग्रेड्स. So there is an important thing that we I have to discuss. Yeah, a package is a bundle of one or more crates that provides a set of functionality. पैकेज क्या होता है कि बंडल होता है एक या एक से ज़्यादा क्रेट्स का. आप मल्टीपल क्रेट्स यूज़ कर सकते हैं, और उसमें मल्टी जो कि डिफरेंट फंक्शनलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर the end goal or target goal that they want to achieve with their goal. Or let's say a package contains a cargo toml that describes how to build those crates. Cargo is actually a package that contains the binary crate. Cargo by itself is a package that contains binary crate. What is a binary crate? Let's discuss this. This is a binary crate. So what is binary crate? uh, जिसमें आपके ये सारे हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम्स और ये सारी चीज़ें चल जाती हैं. अब यहाँ पे आ जाते हैं, हम यहाँ से देखते हैं कि रस्ट का एंट्री पॉइंट क्या है. ये मेन डॉट आर एस फाइल है. हमने यहाँ पे कहीं डिफाइन तो नहीं किया, तो बाय डिफॉल्ट रस्ट को पता है जब हम कार्गो न्यू और फिर हम पैकेज का नाम डालते हैं, तो हम कार्गो समझ जाता है कि ये एक सिंपल प्रोजेक्ट इंस्टॉल करना चाहते हैं जो कि बाइनरी प्रोजेक्ट. तो लेट्स से इफ आई वांट टू क्रिएट अ लाइब्रेरी, आई कैन यूज cargo new lecture 5 minus minus if I press the enter, it will throw an error because the lecture 5 directory already exists in my directory. However, oh, all right, it will not throw an error. It will create a project or the package inside the lecture 5 folder that I don't want to create it right now. So there is a way how we can create a library using cargo new command. अब आ जाते हैं यहाँ पर main डॉट आर एस. मेन डॉट आर एस में अगर मैं कार्गो रन करूँगा तो ये सिंपल सा हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम चल जाएगा और ये प्रिंट कर देगा हेलो वर्ल्ड इन टर्मिनल. यहाँ पे इसने प्रिंट भी कर दिया. ठीक है, मैं थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूँ तो आसानी हो जाएगी. ऑलराइट, अब आ जाते हैं कि हमें किस तरह अपने कोड को डिवाइड करना है मॉड्यूल्स में. कि लेट्स से अगर हम जावास्क्रिप्ट और टाइपस्क्रिप्ट में क्या करते थे कि हम क्या प्योर जावास्क्रिप्ट में हम क्या करते थे, देखो यार, हम लेट्स से कोई कोई चीज़ पे पैकेज यूज़ करना था तो हम क्या देते थे भाई. लेट्स से लेट्स टेक जस्ट टेक एन एग्जांपल. या हम उस पे आ जाते हैं कॉमन जेएस पे. या अगर मैं
import let's say tools for React mod tools. सो यहाँ पे मैंने इस तरह इंपोर्ट कर लिया, तो दोनों इंपोर्ट कमांड्स यानी इंपोर्ट के तरीके बेहतर है अगर अकॉर्डिंग टू द मॉड्यूलर जेएस और कॉमन जेएस। सो अच्छा, अब आ जाते हैं, अब मैं चाहता हूँ कि lib डॉट आर एस की फाइल क्रिएट करूँ। अब मैंने जैसे ही lib डॉट आर एस की फाइल क्रिएट की तो रस समझ जाएगा कि यहाँ पर जितनी भी फाइल्स आएंगी वो है लिब लाइब्रेरी फाइल्स, जो कि एग्जीक्यूटेबल नहीं है, जो कि मैं रन नहीं कर सकता, एग्जीक्यूट नहीं कर सकता, वो इंटरनल यूज के लिए है। जब भी मुझे कोई फाइल एग्जीक्यूट, कोई चीज़ एग्जीक्यूट करनी होगी, मुझे वो मेन डॉट आर एस में हमेशा बतानी पड़ेंगी, डिफाइन करनी पड़ेंगी। सो लेट्स टेक, मैं चाहता हूँ कि मेरे पास लाइब्रेरी के कुछ ऐसे फंक्शंस हो जाए। Consider an example that I want to create an application or a library which will provide users the functionality of authentication. So let's say एक function है, sorry, don't define pub right now. Let's create a function, login. For now, just consider it as anonymous function. Oh, sorry, the and uh, कोई definition नहीं है function के अभी. Just I'm writing the structure of a function, login, let's say sign up. फिर इसके बाद आ जाते हैं function, let's say, yeah, let's say log out, whatever. ठीक है, मेरे पास ये फंक्शन है। अगर मैं ये फंक्शन यूज करना चाहूँ अपनी मेन डॉट आर एस की फाइल में, तो मैं यूज नहीं कर सकता। मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, लॉग इन, नो आई कैन नॉट यूज इट, इट विल थ्रो एन एरर। लेट्स से मैंने सेव किया और मैं लेट्स से यहाँ पे रन करने की कोशिश करता हूँ, तो मुझे यहाँ पे एरर दे दिया कि नॉट फाउंड इन दिस स्कोप, देयर इज नो लॉगिन फंक्शन इन दिस स्कोप। अब मैं लेट से यहाँ पर आ जाता हूँ, मैं लिखता हूँ। अब एक तरीका होता है कि हम किस तरह अपने फंक्शंस को, अपने रीयूजेबल को, अपने कोड को रीयूजेबल बना सकते हैं। सो लेट से मैं ये करता हूँ एक काम के, मैं लिख देता हूँ मॉड। मॉड क्या करेगा, आपकी कोड को स्ट्रक्चर कर देगा। मैं लिख देता हूँ मॉड और auth functions मैं यहाँ पे आ जाता हूँ। मैं या जस्ट राइट ऑथ, जस्ट ठीक है, मैं ऑथ लिख देता हूँ मैंने यहाँ पर। अब मैं करता हूँ क्या हूँ, मैं इस ऑथ को इंपोर्ट करने की कोशिश करता हूँ कि मेरे पास ये इंपोर्ट मैं यूज़ कर सकता हूँ या नहीं। तो मैंने यहाँ पे ऑथ लिखा, इसके अंदर फिर मैंने कुछ सर्च करने की कोशिश की, क्योंकि हम क्या करते हैं, डॉट अप्रोच यूज़ नहीं कर रहे हैं, हम क्या करते हैं, डबल कॉलन यूज़ करते हैं और फिर उसके अंदर जाके चेक करते हैं कि भाई वेदर दिस स्पेसिफिक फंक्शन एग्जिस्ट और नॉट। लेकिन मेरे पास इंटेलिजेंस कुछ नहीं बता रहा। अब मैं आ जाता हूँ, by default the behavior of a module is private, or everything inside a module is private. We have to manually write the keyword pub to make it public. um, अब मैं यहाँ पे सेव करता हूँ और मैं यहाँ पर दोबारा आता हूँ और मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ और सेम, आई कैन नॉट सी एनीथिंग। अब मैं यहाँ पे लेट्स से लॉगिन को मैं पब्लिक कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पे आता हूँ और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लॉगिन। it will it is still will not, it will throw an error. Okay, use of undeclared type auth, why it is throwing this error? अब let's say, अब कंसिडर करते हैं इस एग्जांपल को रस के बिहेवियर में, कि मैंने पब्लिक भी डिफाइन कर दिया मॉड पे, मैंने पब्लिक फंक्शन पे भी डिफाइन कर दिया, तो लेकिन ये एक्सेसिबल क्यों नहीं है, लेट्स एक्सप्लोर। ऑलराइट, सो हम क्या करते थे रस्ट रिएक्ट में, हम क्या करते थे, एक चीज पहले तो मैं ये मॉड्यूल हटा देता हूँ एग्जांपल आपको समझाने के लिए, फॉर द टाइम बीइंग। हाँ, यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर आ जाऊँ, मैं आपको एग्जांपल समझाने के लिए कि हम रिएक्ट में क्या करते थे, हम करते थे अगर किसी फोल्डर स्ट्रक्चर से बाहर जाना है, हम लिखते थे डॉट 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 डॉट, यानी लेट्स से फाइल से बाहर जाना है तो ये फाइल से बाहर चले गए, डॉट डॉट स्लैश किया तो इट विल
move the cursor to the previous directory, so the directory outside of the current directory. So अगर मैं यहाँ पर आऊँ, हमारी जो बेस पैकेज का नाम क्या है, लेक्चर 5। अगर मैं इसको यहाँ पे अंडरस्कोर कर दूँ व्हाट्स, ठीक है, मैं अगर यहाँ पे करता हूँ लेक्चर 5 अंडरस्कोर के साथ, तो मैं क्या करता हूँ आसान फॉर द टाइमिंग समझाने के लिए, अब मैं चाहता हूँ कि यूज लेक्चर 5 क्या है, हमारी जो पैकेज का नाम है वो है लेक्चर 5, ठीक है। मैं लेक्चर 5 के अंदर मैं जाता हूँ, मैं इसको कहता हूँ कि हमारा जो एक खास स्पेसिफिक क्या है फंक्शन है, कि हम उसको एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, वो क्या हो सकता है, किस तरह हम उसको यूज़ कर सकते हैं। राइट, सो यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे नाम चेंज कर दिया, और मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ कि मैं यूज़ लेक्चर 5 और लॉगिन, मैंने लॉगिन क्यों डिफाइन किया कि मेरा ये फंक्शन जो है कि जो कि हमारा पब्लिक फंक्शन है, जो कि मैं डायरेक्टली यूज़ कर रहा हूँ, और मैं यहाँ पे मैंने लॉगिन फंक्शन कॉल कर दिया। अगर लेट्स से मैं चाहता हूँ यहाँ पर साइन अप को एक्सेस करना, अब मैं लेट्स से यहाँ पे सेम एग्जांपल, अभी मैं वो दूसरी अप्रोच सिंगुलर अप्रोच नहीं सिखाता, मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, मैं यहाँ पे इसकी जगह पे मैं साइन अप लिख देता हूँ, क्या होता है देख, लेट्स सी। मैंने कार्गो रन किया एंड लेक्चर 5 जनरेटेड वन वार्निंग, लेक्चर 5 ड्यू टू वन प्रीवियस एरर वन वार्निंग एमिटेड। अब एरर क्या आया है, प्राइवेट फंक्शन, इसने हमें पहले से बता दिया कि we have a private function which we are currently using in main.rs. So the best approach would be, if I want to use any function into the main file, I have to just make it public and I can directly use it. And if I run cargo run command, so yeah, it's working perfectly fine. The function is running. However, अब सेम एक ही फाइल से मैं चीज़ें इंपोर्ट कर रहा हूँ और फिर मैं उसको क्या कर रहा हूँ कि डिफरेंट लाइंस में लिख रहा हूँ, तो इससे बेहतर अप्रोच क्या होती है कि लॉग इन एंड मैं यहाँ पे लिख दूँ एक साइन अब, साइन अप, सिंग अप लिख दिया है, साइन अप एंड लेट्स रन कार्गो का रन, कार्गो रन किया और मेरे पास यहाँ पे ये रन हो गया है परफेक्टली फाइन, देयर इज नो एनी एरर्स। ये वार्निंग है क्योंकि हमने यूज़ नहीं किया। हाँ, अगर इस इशू को भी रिमूव करना है तो हम क्या कर सकते हैं कि हम ये इसने क्या बता दिया कि वार्न अनयूज इंपोर्ट्स। अगर मैं यहाँ पे एक काम ये कर सकता हूँ कि लेट्स से अभी फॉर द टाइम बिंग मैं यहाँ पर आ जाता हूँ और मैं एक स्ट्रक्ट बना लेता हूँ, स्ट्रक्ट और इनम को भी देख लेते हैं वो किस तरह इंपोर्ट हो सकते हैं दूसरी फाइल में। तो मैं लिख देता हूँ स्ट्रक्ट, और मैं लिख देता हूँ व्हाट शुड बी स्ट्रक्ट, हाँ, credentials for a user, so username and password, string and password will be a string, ठीक है। मैंने क्रेडेंशियल्स डिफाइन कर दिए, मुझे अगर लेट से कोई क्रेडेंशियल्स, जब भी यूज़र लॉगिन या साइन अप करेगा तो वो क्रेडेंशियल्स पास करेगा जो कि यूज़र नेम या पासवर्ड होंगे। सो लेट्स से अगर मैं यहाँ पर आ जाऊँ और मैं सेम काम यहाँ पे क्रेडेंशियल्स के साथ करूँ, और मैं यहाँ पे इसको साइन अप को हटा देता हूँ, मैं लिख देता हूँ क्रेडेंशियल और लेट्स से लेट क्रेड, मैं लिख देता हूँ क्रेडेंशियल्स और मैं यहाँ पे लेट्स से यूज़र नेम। वैसे मैं यहाँ पे अगर स्ट्रक्ट डिफाइन करूँ, लेट्स से स्ट्रक्ट ABC and it has a username, y- just username and it will be string, W क्या कोई ठीक है। अगर मैं यहाँ पर आऊँ और मैं इसको कमेंट आउट, इंस्टेड में यहाँ पे क्रेडेंशियल्स की जगह यूजर नेम लिख, और सॉरी एबीसी लिख दूँ, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ यूज़र लिखूँगा, मुझे इंटेलिजेंस बता देगी कि मैं क्या चीज़ यूज़ करना चाह रहा हूँ। मैं यहाँ से because I am using the new suggestions. All right, let's reload all the extensions. I guess मैं extension work नहीं कर रही। Um, let's reload our extensions. All right, I had to. There was an error that big. There was an issue that I was directly using the lecture 5 code.
inside this learning Rust directory, and I have opened this lecture 5 folder directly inside VS Code, and I can directly consume. I can see the IntelliSense. सो या यहाँ पर मेरे पास यूज़र नेम शो हो रहा है कि मेरे पास यूज़र नेम मुझे चाहिए। हाउएवर अगर मैं यहाँ पे सेम चीज़ यहाँ से ये हटा दूँ और मैं यहाँ पे लिख दूँ क्रेडेंशियल्स। ठीक है, मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि मैं क्रेडेंशियल यूज़ करूँ, मैं लिख देता हूँ क्रेडेंशियल्स। एंड मैं यहाँ पे जैसे मैं कुछ चाह रहा हूँ कि इंटेलिजेंस आए, मेरे पास इंटेलिजेंस नहीं आ रही। क्यों? कि मेरा ये अभी स्ट्रक्ट पब्लिक नहीं है। मैंने पब्लिक कर दिया। व्हाट इफ अब क्या होगा? मैंने क्रेडेंशियल्स को पब्लिक किया, मैंने यहाँ पे पब्लिक कर दिया, लेकिन फिर भी मेरे पास कुछ भी नहीं आ रहा। तो स्ट्रक्ट में ये इशू है कि जो भी फील्ड स्ट्रक्ट के अंदर जो आपको पब्लिक करनी है, जो सिर्फ एक्सेसिबल बनानी है, लेट्स से समटाइम्स we only allow users to access the username of any or just metadata of any user model. So let's say the user will not be able to access the password because it will only be used for the uh, let's say only be used when users are signing up. They can pass the password field, and then on the login they will, let's say अगर user ने login कर लिया, they will not get the password in response. However, लेकिन इंटरनली हमें पासवर्ड्स तो यूज़ करने होते हैं। तो ये कि इस तरह स्ट्रक्स में कुछ चीज़ें हम पब्लिक कर सकते हैं, प्राइवेट कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द यूज़ केस। लेट्स से अगर मैं चाहता हूँ कि मैं यूज़र नेम को फॉर द टाइम बिंग पब्लिक कर दूँ, अब मैंने यहाँ पे यूज़र नेम को पब्लिक किया, सेव किया, और अब मैं यहाँ पे कंट्रोल स्पेस दबाऊंगा। अब मुझे यहाँ पे इंटेलिजेंस बता रही है कि आपके पास क्रेडेंशियल्स के अंदर यू हैव अ फील्ड यूज़र नेम, यू कैन लेट्स से पास यूज़र नेम। मैं लिख देता हूँ स्ट्रिंग फ्रॉम एंड लेट्स से हेलो, एंड यहाँ पे मैं सेव कर देता हूँ। वट लेट ठीक है, और मेरे पास यहाँ पे आ रहा है मिसिंग स्ट्रक्चर फील्ड्स पासवर्ड कैन नॉट कंस्ट्रक्ट credentials with struct literal syntax due to private fields. I cannot create this credentials struct because I I'm missing one field password। एक field है जो कि missing है, जो कि मैंने provide नहीं की। However, it is private। सो अब ये प्राइवेट फील्ड है। अब क्या करना पड़ेगा? मैं अब यहाँ पर आता हूँ और अब मैं इसको लेट से पब्लिक करता हूँ, और मैं यहाँ आके मैं इस पे सेम काम यहाँ पे कर देता हूँ पासवर्ड। अब मैंने पासवर्ड किया, सेव किया, एंड द एरर इज गॉन, एरर चला गया। अब मसला सारा इस तरह होता है। लेट से अगर मैं इनम बना लेता हूँ, इनम इनम एंड लेट से स्टेटस, स्टेटस will be uh, let's take an example. What in progress? Let's say in pro yeah in pro, progress. या मैं यूं कर दूं इन प्रोग्रेस। मैं यहाँ पे यूं कर देता हूँ प्रोग्रेस डन, और मैं यहाँ पे टू डू इन प्रोग्रेस एंड डन। अगर मैं यहाँ पे स्टेटस को डिफाइन कर लेता हूँ, अब मैं यहाँ पे मैं लिख देता हूँ स्टेटस। मैं सेम काम यहाँ पे स्टेटस के साथ करना चाह रहा हूँ। enum status is private now। what I have to do, I have to make it public to access this inside the main file। now it is accessible। let's say मैं यहाँ पे आता हूँ status, या जस्ट मैं एक काम ये करता हूँ, मैं यहाँ पे ये कर देता हूँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ just make it public status and it will be status। ठीक है, अब मैं यहाँ आता हूँ और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ status, सॉरी द स्टेटस विल बी स्टेटस कॉलन कॉलन। अब मुझे enum में आई डोंट हैव टू explicitly define that this specific enum is public or this specific this in progress is private public, or enum will be solely or wholly will be public if I define it, make it public. The all the enums will be accessible. If I make it private, it will be private. All these stuff inside this enum will be private।
सो लेट्स अगर मैं यहाँ पास कर देता हूँ डन, एंड मैं यहाँ पे सेव कर देता हूँ, एंड the errors are gone. I can print it out, and this is a pretty much simple example of how we can create the public and private uh, functions, enums, struct, and so on and so forth. Now, अब सारी चीज़ें तो मैंने एक ही चीज फाइल में डिफाइन कर दी कि हमारे लेट्स सेट दी स्ट्रक्स भी एक ही फाइल में आ गए, enum भी एक ही फाइल में आ गए, लॉगिन की सारी चीज़ें भी एक में आ गए। लेट्स अगर मैं डेटाबेस पे काम करूँ, सो मेरे पास एक डेटाबेस में मॉडल बना लेते हैं, बल्कि क्रेडेंशियल्स ही एक मॉडल है। या मैं यहाँ पे यूँ कर देता हूँ पब पब लाइक्स कैपिटलाइज पब what's happening pub let's capitalize all right. Okay. Pub and mod the user, and inside the struct the user, and inside the user we have username, a string, password will be a string, let's say और क्या हो सकता है यूज़र के स्कीमा में, नेम आ सकता है स्ट्रिंग, और क्या हो सकता है लेट्स से एज आ सकती है जो कि हमारी i32 हो जाएगी, and what can we pass it in here. So yeah, that's pretty much simple struct for a user. So अब मैंने यहाँ पे एक मॉडल डिफाइन कर दिया, तो हर चीज़ को हम फाइल में अगर ब्रेक इट डाउन करें, सो हाउ वी कैन ब्रेक ऑल दिस स्टफ इनटू डिफरेंट मॉड्यूल्स और डिफरेंट फाइल्स। तो अब इसको डिफाइन करने के लिए हम क्या करते हैं, हम यूज़ कर लेते हैं मॉड्यूल्स। एग्जाम्पल ले लेते हैं अभी फॉर द टाइम बिंग, एक ही फाइल के अंदर एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। मैं से लिखता हूँ मॉड, एंड इनसाइड मॉड आई टाइप इट मॉडल्स। अब मैंने मॉडल्स कहा और मैं ये मूव कर देता हूँ पब स्ट्रक्ट यूजर in here, let's say user is active, or is verified, and I want to pass it status. अब मैं चाहता हूँ कि ये status आ जाए, however it is not accessible. I'm seeing cannot find type status in this scope, because module is a separate scope, के module बिल्कुल separate एक स्कोप है कि यार इसके अंदर कुछ भी नहीं आ सकते, एक समझ लो आइसोलेटेड स्पेस है। मॉड एक सेपरेट फाइल हो गया। जस्ट टेक एन एग्जांपल। अब इसमें हम बाहर की चीज़ों को एक्सेसिबल कैसे बनाएंगे, वी यूज़ काइंड ऑफ इम्पोर्ट काइंड ऑफ थिंग। कैसे, अब मैं कैसे करूँगा कि लेट से मुझे मॉडल से बाहर स्टेटस को एक्सेस करना है, तो वो किस तरह करूँगा। मैं यहाँ पर आ जाता हूँ, मैं आपको एग्जांपल के तौर पर, तो इसकी एग्जांपल बेहतरीन सी यही है कि मैं लेट से, क्योंकि हमें पता है कि हम क्या करते थे, फाइल से बाहर जाने के लिए जावास्क्रिप्ट में डॉट स्लैश यूज करते थे। तो जस्ट कंसिडर अ कीवर्ड सुपर। सुपर क्या है, इट विल बी कंसिडर्ड एट डॉट स्लैश, कि डॉट स्लैश यानी मैं इस मॉडल से बाहर आया और मैं इस रूट पे से, यानी यहाँ से इस फाइल में से स्टेटस को एक्सेस कर रहा हूँ, मीन्स लाइब्रेरी में से एक्सेस कर रहा हूँ। व्हाट इफ मैं, मेरे पास एक और कंडीशन हो कि मैं यहाँ पे एक काम ही कर सकता हूँ, मैं यूज़ कर सकता हूँ क्रिएट। मैं क्रिएट में आया, मैं अगर यहाँ से इसको हटाऊँ, मैं लिखूँ क्रिएट। अब क्रिएट के अंदर मेरे पास ये सारी चीज़ें आती। क्रिएट इज कंसिडर्ड एज द रूट ऑफ दिस फाइल। कि क्रिएट का, हमारे क्रिएट का क्या मतलब है कि ये हमारी क्रिएट है। इस क्रिएट के अंदर अब मैं लेट से क्रेडेंशियल्स के अंदर जाता हूँ। इस क्रिएट के अंदर मेरे पास दो चीज़ें एक्सेसिबल हैं, एक क्रेडेंशियल्स है, एक स्टेटस है, और मॉडल्स। मॉडल्स इज, यू कैन सी द आइकन्स यूज्ड हियर। ये स्ट्रक्ट का आइकन है, enum, और ये डिफाइन कर रहा है कि ये मॉडल है। लेट से मैं, मुझे डायरेक्टली, तो मैं यूं भी इसको यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है। अगर आ जाते हैं, मैं एक और चीज़ यूज़ कर लेता हूँ। मैं इन सबको एक लेट्स से बेसिक उसमें कन्वर्ट कर देता हूँ, मॉड कंट्रोलर।
Okay, we usually define controllers for the basic functionalities, or we have separate services or repositories in JavaScript. So we will discuss about it later on. So let's say मेरी ये basic सारी functionalities हैं login की और sign up, log out, ये सारी functionalities हैं जो कि मुझे यूज़ करनी है कंट्रोलर्स में. लेट्स से लॉगिन में मैं ये करता हूँ कि बल्कि साइन अप में ये करता हूँ कि मैं साइन अप में एक यूज़र का स्कीमा बना लेता हूँ. लेट्स यूज़र इज इक्वल्स टू, मैं यूज़र, अब मेरे पास तो कोई भी चीज़ एक्सेसिबल नहीं, मैं यूज़र को तो एक्सेस ही नहीं कर पा रहा. सो नाउ देर इज वन थिंग दैट आई कैन consider it use, and I can create and go inside the model, inside models, and inside models I can use user. ठीक है, मेरे पास यूज़र आ गया और मैं यहाँ पे सबको पब्लिक करना पड़ेगा. pub 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 and pub. ठीक है, and let's take a name just for now, just for the sake of an example, and name, username, password, name, username and password. ठीक है, और इसके बाद एज आ जाती है. एज को मैं let's say 20, and is verified will be status. Now where is the status? I How can I access the status? मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं स्टेटस कर रहा हूँ, मेरे पास कोई इंटेलिजेंस भी नहीं आ रही. So what I can do, I can, there are two choices that I can directly consider: create and status, and I can be done. Let's say if I don't want, let's say अगर मैं चाहता हूँ कि मैं इस मॉड्यूल के अंदर डिफाइन कर दूं कि चाहे मुझे जितनी बार भी स्टेटस यूज करना हो मैं यूज कर सकूं, तो क्या करूंगा, मैं यूज create and just do status. ठीक है, and now I can remove create and I can directly use a status colon done, in progress, and so on and so on. So how this is the approach that we used to we usually follow, um, कि हम किस तरह डिफरेंट हमारे कोड के चंक्स को मॉड्यूल्स में डिवाइड कर सकते हैं और फिर हर मॉड्यूल को इंडिविजुअली यूज कर सकते हैं. एक और सिचुएशन आ जाती है जो कि अगर हम डॉक्यूमेंट में, वेयर इज दिस डॉक्यूमेंट, ओहो, लेट्स क्लोज दिस, ये इसको डोंट सेव, सी वेयर इट इज, लेट्स कम, या यहाँ पे आ जाते हैं. We have already covered this, defining modules to control scope and privacy. हम प्राइवेसी को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, मॉड्यूल चीट शीट ये बता रहे हैं कि उन्होंने अपनी एग्जांपल दे दी है गार्डन और वेजिटेबल की से. they are using create garden vegetables, and inside the vegetables they have a it is a struct, I guess, as well as type in the, this is a type that they have defined through mm, pub mod vegetables, and inside they have defined the struct. And so they are following the same approach but with a different example. So because I thought that the login example would be much easier for you, because we have already uh, covered MERN stack in our web development bootcamp, so I thought that the examples would be much easier to understand. कि यहाँ पे वो बता रहे हैं कि प्राइवेट मॉड्यूल्स है, वो हम सारी चीज़ें ये देख चुके हैं कि कब प्राइवेट है कब पब्लिक है, एंड सो ऑन सो फोर्थ. So these are the examples. कि we mentioned that a package can contain both source main.rs binary create root as well. The main.rs will be a binary create, as well as a lib.rs means the library create. So there will be one, optionally one library create in the binary crate. See, there will be multiple. So if you, I can see that, and both crates will have the package name by default. Typically, packages with this pattern or both have library, and a binary crate will have just enough code in the binary crate to start and execute
executable that calls code within the library crate. The binary crate will be executable विल ओनली भी लाइब्रेरी विल नॉट बी एक्जीक्यूटेबल लाइब्रेरी आपकी एग्जीक्यूट नहीं हो सकती आप लेट्स से अगर मैं लाइब्रेरी को रन करना चाहूँ तो लाइब्रेरी रन नहीं होगा द मेन डॉट आर एस फाइल विल कैन बी रन एंड इट कैन बी एग्जीक्यूटेड सो अगर मैं यहाँ पे आ जाऊँ सो दे आर explaining you with the example this is like starting a file system path with the dot dot slash using super use allows us to reference item that we know is in the parent module which can make rearranging module tree when the module is closely related to the parent but so let's say they have explained that dot dot slash करके किस तरह आप relative और फिर absolute path define कर सकते हैं कि relative path क्या होता है absolute path क्या होता है how you can use super how can you use create colon colon so these are the examples of absolute and relative paths so they have they are explaining that use create uh, unuse import so you the compiler error shows that the shortcut no longer applies within the customer so they cannot directly access a specific function on so and so forth so these are the example multiple there are multiple examples that they have explained through so they are using a library or the dependency installed through crates.io so let's first explain this example अच्छा एक और चीज़ कि हम इसको फाइल्स में कैसे डिवाइड कर सकते हैं हमने डिस्कस किया कि फाइल बना सकते हैं तो एक काम ये करते हैं कि हम एक फॉर द टाइम बिंग मैं ये कर लेता हूँ मैं मॉडल डॉट आर एस राइट नाउ आई एम क्रिएटिंग अ सेपरेट फाइल instead of creating folders we will explain it later on we will discuss this यहाँ पे मैंने मॉडल डिफाइन किया आप यहाँ पे देखें ओपेसिटी भी इसकी बहुत कम हो गई यानी कि क्या बताया दिस फाइल इज नॉट इंक्लूडेड एनीवेयर इन द मॉड्यूल ट्री so Rust Analyzer can't offer ID services so it is not defined this model is not defined in somewhere we have to define it inside the pub library crate let's say अगर मैं इसको पब्लिक करता हूँ और मैं यहाँ पर आ जाता हूँ मैं यहाँ लिख देता हूँ टॉप पे ही लिख देता हूँ मॉड और मैं मॉडल से फाइंड कर देता हूँ और यूज और अब मॉडल्स अच्छा एक और चीज़ मैं यहाँ पर मॉडल नहीं करूँगा यानी मॉडल का नाम यहाँ पे मैं मॉडल का नाम नहीं लिखूंगा कि ये हमारा मॉड का नाम मॉडल्स है इस तरह नहीं लिखूंगा मैं फाइल का नाम लिखूंगा कि फाइल का नाम क्या है मॉडल डॉट आर एस अब जैसे ही मैं यहाँ पर आ जाऊंगा ना अब मैं यहाँ पे मुझे आप देख रहे हैं इंटेलिजेंस भी आ गई इट इज नाउ द ओपेसिटी the rust is or the rust analyzer is now providing me the intelligence so अब मेरे पास यहाँ पे issues आना शुरू हो गए कि कैन नॉट फाइंड टाइप स्टेटस इन मॉड्यूल सुपर सुपर मींस इसी मॉड्यूल के अंदर कोई चीज़ ऐसी नहीं है अब मैं क्या करूँगा मैं करूँगा क्रिएट मैं अगर यहाँ से हटाऊँ मैं आपको इंटेलिजेंस के थ्रू अब क्रिएट करके मैं स्टेटस को भी एक्सेस कर सकता हूँ अब ये क्रिएट कहाँ आ गया क्रिएट आ गया इस लाइब्रेरी पे यहाँ पे आया और अब मुझे ये बता रहा है कि भाई इस क्रिएट के अंदर यानी इस लाइब्रेरी के अंदर यू कैन एक्सेस दिस स्टेटस फ्रॉम वेयर अब मैं यहाँ पे आता हूँ मेरे पास यहाँ पे इशू आ रहा है अ सिमिलर पाथ एक्सेस मॉडल्स ये क्योंकि हमने यहाँ पे शुरू में ही डिफाइन कर दिया अब मैं यहाँ पे अब मैं यहाँ से इसको कमेंट आउट करता हूँ या रिमूव कर देता हूँ अब मेरे पास यहाँ पे एरर आना शुरू हो गया कैन नॉट फाइंड स्ट्रक्ट वेरिएंट मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ मैं यूँ करूँगा मॉडल मैंने यहाँ से मॉडल डिफाइन किया और राइट यूज मैं यहाँ पे यूज करता हूँ अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लेट्स से क्रिएट अब मेरे पास क्रिएट में मॉडल आ रहा है मैं मॉडल के अंदर गया अब मेरे पास मॉडल के अंदर मॉडल्स आ गया अब मेरे एरर भी देख लेते हैं यहाँ पे कि यूज़र को मैं एक्सेस नहीं कर पा रहा स्टिल तो अब मैं क्या करूँगा मेरे पास दो चॉइसेस मैं इसी के अंदर डायरेक्ट बहुत ज़्यादा लेंथ में जाके डीप में जाके मॉडल को डिफाइन करूँ लेट्स से व्हाट इफ आई हैव अ डिफरेंट I have another let's move this credentials strike inside this मैं यहाँ आ जाता हूँ मैं यहाँ पे क्रेडेंशियल्स को भी डिफाइन कर देता हूँ अब मैं यहाँ आके सेव करता हूँ
I'm not using credentials right here, so let's use uh, just to explain you how credentials. अब मैंने जैसे ही क्रेडेंशियल्स पे क्लिक किया तो मुझे इंटेलिजेंस ने ऑटोमेटिकली इंपोर्ट करके दे दिया। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्रेडेंशियल्स और यूजर आर बीइंग इंपोर्टेड in JavaScript language कि imported from this model.rs file और यहाँ पे क्या एरर आ रहा है missing field status all right. So where is this status and make it status, just save it and the errors are gone. So now यहाँ पे status का issue आ रहा है तो I can do one thing. I can do one thing instead of redefining create status. I can do one thing. Now I can directly define status. अब मैं यहाँ पे सेव कर देता हूँ या राइट हियर आई कैन डायरेक्टली यूज इट। एक और चीज़ जो मेरे जहन में आ रही है जो कि हम डिस्कस कर सकते हैं ये सारी चीज़ें। अब यहाँ से मैं लेट से मैं क्रेडेंशियल्स को इंपोर्ट करना चाह रहा हूँ तो क्रेडेंशियल्स को कैसे इंपोर्ट करूँगा कि मैं लेक्चर 5 के अंदर मैं डायरेक्टली क्रेडेंशियल्स को एक्सेस नहीं कर सकता। मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं यहाँ पे आया, अब मेरे पास सिर्फ स्टेटस का एक्सेस है, अब मेरे पास बाकी चीज़ों का एक्सेस नहीं है। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ कि मैं यहाँ पे आऊँ, मैं मॉड, यहाँ पे एक और चीज़ आ जाती है मॉडल। अब मैं यहाँ पे मैं कर सकता हूँ कि मॉडल sorry use model colon models and inside models we have credentials and now we can access the credentials and from for status we can directly use status from the base crate. So मैं लेक्चर 5 के अंदर आया पैकेज में और फिर पैकेज के बाद मैं डायरेक्टली लिब में आ गया और लिब से मैंने स्टेटस को उठा लिया। So this is how the import structure works in Rust. Just अब आई थिंक डॉक्यूमेंटेशन में इतना डीप कोई एग्जांपल्स तो नहीं प्रोवाइड की तो इसको ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेना कि डिफरेंट एग्जांपल्स के थ्रू कर लेना कि कोई एक एग्जांपल बना लेते हैं कि मेरे पास एक कंडीशन ये है कि मेरा एक डिस्ट्रीब्यूटेड आर्किटेक्चर है। डिस्ट्रीब्यूटेड मींस कि इजी कर लेते हैं कि हर जगह बिखरा हुआ है, अलग अलग जगह है। अब लेट्स से मेरी एक एप्लीकेशन में फंक्शनैलिटी है, we have to get the list of users। एक हमारी एक रिक्वायरमेंट है जो कि हमें एडमिन डैशबोर्ड दो, पहले तो दो यूजर्स रोल्स डिफाइन कर लेते हैं, एंड यूजर्स एंड द एडमिन डैशबोर्ड। दो अलग अलग मॉडल्स दो अलग अलग आपके सेपरेट व्यूज हो जाएंगे। आप ये सारी है ना बना लेना सोर्स के अंदर के दो व्यूज, यानी व्यूज की एक डायरेक्टरी बना लेना, उसके अंदर फिर व्यूज डिफाइन कर देना। फिर एक और होगा मॉडल की डायरेक्टरी, मॉडल के अंदर फिर मॉडल बना लेना। और ये सारी चीज़ें वी कैन क्रिएट लेट्स से मॉडल, और मैं यहाँ मॉडल के अंदर मैं ये फाइल को मूव कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे आऊँ लेकिन डायरेक्टली अब मैं यूज़ नहीं कर सकता। लेट्स से मैं अगर यहाँ पे सेव करूँ और मेरे पास यहाँ लिब में भी एरर्स आ रहे हैं, देखो यहाँ पे एरर आ रहे, कैन नॉट फाइंड मॉड्यूल। सो व्हाट आई हैव टू डू, आई हैव टू क्रिएट अ mod.rs फाइल because lib.rs file is will point to the mod.rs file, will not uh, go into the model.rs में। अब यहाँ से मॉडल्स को सॉरी मॉड पे आ जाता हूँ। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ मॉड, अब मैं यहाँ पे मॉडल को डिफाइन कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पे देख रहे हो यहाँ से सारे एरर्स चले गए। अब मैं यहाँ पे वही डायरेक्टरी स्ट्रक्चर चेंज हुआ, अब मैं यहाँ पे सेम स्ट्रक्चर फॉलो नहीं कर सकता। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, क्रिएट के अंदर जाके अब मेरे पास मॉडल तो है, इनसाइड दिस मॉडल आई कैन नॉट एक्सेस एनीथिंग। व्हाई? अब मैं यहाँ पे सेम चीज जो कि हमने यहाँ पे की थी, कैन यू सी यूज, पहले हमने मॉडल किया, फिर यूज मॉडल, देन इनसाइड मॉडल्स एंड इनसाइड क्रेडेंशियल्स। सो यूज लेट्स से मॉडल मॉडल, अगर मैं सेम काम यहाँ पे करूँगा ये भी नहीं वर्क करेगा। क्यों? कि ये मॉडल पॉइंट कर रहा है इसको, ये मॉडल डायरेक्टली यहाँ पे आ रहा है और ये मॉडल पॉइंट कर रहा है यहाँ पर। सो अब यहाँ पर मैं अगर
Where is this thing? Model, models, yeah, right here, यूजर। अब मैं यहाँ से यूजर्स को डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर पाऊंगा। क्यों? अब मुझे यहाँ पे करना पड़ेगा एक और चीज, पब मॉड। अब मैं पब करूंगा ना, सो अब मैं यहाँ पे इंटेलिजेंस को बोलूंगा कि मुझे इंपोर्ट कर दे, एंड नाउ यू कैन सी inside create it is exporting status and model एंड अब ये सारी चीजें स्टेटस के क्रिएट के अंदर से अगर मैं यहाँ से इसको सेपरेट आउट कर दूँ, मैं यू सेम अप्रोच यूज कर लूँ क्रिएट के अंदर, मॉडल में जाके मॉडल से मॉडल में हमारा मॉडल है, एंड या now you can access and inside models you can access credentials and user. Now how the public and private can be is must is used in the Rust. So now आपको समझ आई the significance of using public and private in Rust, because it helps you a lot when you are building the uh, large scale applications where you have some functionalities exposed to some kind of users. Some functionalities will only be exposed to a specific kind of users. So इस तरह का आपका इस तरह की आपकी एप्लीकेशन बन जाती है। सो आई गेस मेरी तरफ से ये एक्सप्लेन अच्छा हुआ होगा, आपको समझ आया होगा। अगर जस्ट एक नेक्स्ट वीडियो का रिकैप कर एक रिव्यू कर लेते हैं कि हम क्या नेक्स्ट उसमें पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ये सारी चीज़ें सेम हैं जो कि हम ऑलरेडी डीप में एक्सप्लोर कर चुके हैं। हमने तो प्रॉपर डायरेक्टरी स्ट्रक्चर बना लिया। हाँ, यहाँ पे मैं लेट्स से अगर कोई लेट्स मैं यहाँ से सर्च कर लेता हूँ, मैंने इंस्टॉल करके नहीं दिखाई कोई आपको डायरेक्ट क्रिएट। मैं रैंड इज अ रैंडम नंबर जनरेटर। सो लेट्स से मैं यहाँ से इंस्टॉल कर लेता हूँ। मैं यहाँ आता हूँ टर्मिनल, बिकॉज आई एम यूजिंग WSL। मैंने कार्गो ऐड रैंड। Now you can see inside the cargo.toml, you will see a dependency rand. Now, अब मुझे तो नहीं पता रैंड, ये जो रैंडम नंबर की जो डिपेंडेंसी है, इसमें क्या क्या फंक्शनलिटीज मेरे पास है। तो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, मैं यहाँ से एक्सप्लोर कर लेता हूँ। रैंड इज अ सेट ऑफ केस सपोर्टिंग pseudo random generators. So what are the functionalities that I can access to? Rand is built with these. There is an explanation of it। अगर मैं यहाँ पर आऊँ, या build over a range now is an asymptotically fast or automatically seeded and reasonably strong generator। अब मैं यहाँ पे रैंक कॉलन रेंज में आ जाता हूँ। सो इट्स एक्सप्लेनिंग मी, आई कैन क्लिक ऑन एनी ऑफ द लिंक एंड इट विल explain me how can I can use it। Yeah, right here I can um, how can I use this library। मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं यहाँ से just to explain you, ठीक है, मैं यहाँ से सबको कमेंट आउट कर देता हूँ और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ use RNG, sorry, RAND and RAND, and inside RAND I can use any of the thing, RNG, uh, prelude, random. So let's say random। अब मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं लिख देता हूँ let random, oh sorry, ra, random number, just random, and the random is a function that will return me। अगर मैं यहाँ पे what it will return, I can see it here, generate a random value using the threaded local random number generator if I want to see the implementation। So it is a function with its generic key returning the generic and so on and so forth। So now अब मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, मैं यहाँ पे ये error दे रहा है type annotations। So अब मुझे टाइप का इशू आ रहा है कि टाइप कंसिडर गिविंग रैंडम नम एंड एक्सप्लिसिट टाइप के, हमें एक्सप्लिसिट टाइप बतानी पड़ेगी कि इसकी टाइप क्या, टाइप एनोटेशंस नीडेड कैन नॉट सेटिस्फाई स्टैंडर्ड यूनिफॉर्म। तो इसकी टाइप क्या है?
इसकी टाइप क्या है, रिटर्न टाइप, जो कि हमें देखनी पड़ेगी। ये थ्रेड रेंज है। तो हम एक सिंपल एग्जांपल के थ्रू देख लेते हैं कि हम यहाँ पे आ जाते हैं। टन 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 रेंज प्रीलूड। और या मैं एक काम ये करता हूँ, मैं आपको जस्ट फॉर द टाइमिंग में समझा देता हूँ। मैं यहाँ पे प्रिंट करना चाहता हूँ। यहाँ पे मेरे पास वही टाइप एनोटेशंस कैन नॉट, बिकॉज ये इट्स अ थ्रेडेड थिंग। सो मैं यहाँ पे आर एन डी, मैं इसके अंदर मैं आर एन जी, वेर इज आर एन जी, रैंडम रैंडमाइटर आर एन जी। ठीक है। अब मैं यहाँ से रेंज को प्रिंट करना चाहता हूँ। द थ्रेड रेंज डजंट इम्प्लीमेंट डिस्प्ले एफ एम टी, इज नॉट इम्प्लीमेंट थ्रेड एफ एम टी। ओके, मैंने यहाँ पे एफ एम टी नहीं इम्प्लीमेंट किया है। ठीक है। अब मैं यहाँ से मैं, ओ सॉरी, आई गो राइट, zero copy talent, compiling, it's compiling. It's taking a bit of time and yeah, ये एक यहाँ पे आप देख सकते हैं एक स्ट्रक्ट है जिसके अंदर थ्रेड आरएनजी। अब थ्रेड आरएनजी क्या है, ये सारी चीज़ें हम डिटेल में एक्सप्लोर करेंगे। आप पैकेज के बारे में भी खुद से एक्सप्लोर कर सकते हैं कि ये थ्रेड आरएनजी एक रेंज है जो कि देता है कि आप फिर उसकी की पे चले जाएंगे और फिर ये सारी पूरी इम्प्लीमेंटेशन है जो कि ये मैक्रो रूल्स आ जाते हैं कि मैक्रो रूल्स किस तरह इम्प्लीमेंट होता है। और काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि डिटेल में हम आने वाले लेक्चर्स में एक्सप्लोर करेंगे कि भाई ये सारी एफ एम टी फॉर्मेटर क्या होता है, ये किस तरह आप बना देते हो अपने खुद से कस्टम मैक्रो रूल्स डिफाइन करते हो, आप खुद से कस्टम मैक्रोज डिफाइन करते हो, और ये सारी चीज़ें जो कि हम एक्सप्लेन कर लेंगे। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़, मेरे पास एक एरर आ रहा है, अनयूज्ड इंपोर्ट्स के। मेरे पास अनयूज इंपोर्ट्स है। अगर मैं यहाँ पे एक और चीज़ करूँ कि डेड कोड, ये डेड कोड की वार्निंग आ रही है। अगर लेट्स से हम टाइपस्क्रिप्ट में क्या करते थे, डिसेबल, जस्ट एक ES लेंट डिसेबल, या तो हम करते थे @TS इग्नोर, इस तरह की हम वो यूज करते थे। अब यहाँ पे क्या करना है, अगर लेट्स से इस तरह की वार्निंग को हमें इग्नोर करना है तो हम क्या करते हैं, एक्सप्लेस हैशटैग एक्सक्लेमेशन मार्क, और हम कर देते हैं अलाउ। इनसाइड दिस अलाउ, लेट्स से मैं लिख देता हूँ डेड कोड। डेड कोड जो भी हो उसको अलाउ कर दो, उस पर वार्निंग्स ना दिखाओ। यहाँ पे अब सारी वार्निंग्स चली गई। एक और चीज होती है अनयूज्ड वेरिएबल्स। लेट्स से मैं यहाँ पे कर देता हूँ लेट ABC and 3. Um, please, what is happening? Static. Oh, okay. Consider static. I can consider it because हम मॉडल्स डिफाइन कर रहे हैं, तो ये लेट से कुछ वेरिएबल्स ऐसे हैं कि भाई जो कि स्टैटिक रहेंगे, जो कि चेंज नहीं होंगे। हमें स्टैटिक टाइप डिफाइन करनी पड़ेगी। हमने टाइप भी डिफाइन कर दिया। अब यहाँ पे ये बता रहा है कि कन्वर्ट आइडेंटिफायर अपर केस, ये छोड़ देते हैं नॉन अपर केस ग्लोबल। सो हम यहाँ पे एक और चीज़ भी कर सकते हैं कि हम यहाँ पे लिख दें कि अन अनयूज्ड। यहाँ पे आप जैसे ही यहाँ पे आएंगे अनयूज वेरिएबल्स आ जाएगा, अनयूज इंपोर्ट्स ब्रैकेट्स लाइफ टाइम मैथड। सो आप ये सारी वार्निंग को खत्म भी कर सकते हैं इस तरह डिफाइन करके। ठीक है। सो आई गेस दिस एक्सप्लेन्स everything. This I have explained pretty much everything inside this चैप्टर। सो ये हमने काफ़ी डिटेल में देखा, तकरीबन 53-54 मिनट्स की वीडियो हो गई है, जो कि अनएक्सपेक्टेड था मेरे लिए इतना ज़्यादा इस टॉपिक को एक्सप्लेन करना, क्योंकि जो बुक में एग्जांपल्स थी उससे हट के हमने रन टाइम पे, यानी फॉर जब वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है उसी टाइम पे बस फॉर एन एग्जांपल जहन में और उसको इम्प्लीमेंट हमने कर दिया। सो ये है कि अब जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम कलेक्शंस को देखेंगे, कलेक्शंस किस तरह वर्क करती हैं, यूज़ होती हैं। हैश मैप्स हो गए, स्ट्रिंग को डिटेल में देखेंगे कि क्योंकि हमने देखा था ना स्ट्रिंग में डिफरेंट वो हैं मैथ, जस्ट अभी कंसिडर कर ले मेथड्स हैं कि हम स्ट्रिंग फ्रॉम करते हैं, स्ट्रिंग न्यू करते हैं। ये स्ट्रिंग न्यू क्यों है, ये क्यों यूज़ होती हैं, हमने शायद पहले डिस्कस किया था नहीं, कि जो स्ट्रिंग जो
स्ट्रिंग होती है वो UTF-8 फॉर्मेट में होती है, यूनिकोड, वो नेक्स्ट चैप्टर में हम प्रॉपर डिस्कस करेंगे। तो वो एरे में क्यों डिवाइड होती है, फिर उसके बाइट्स किस तरह, और ये सारी चीज़ें डिटेल में देखेंगे। सो ये कि अगर आप अपने तौर पर एक बार रिव्यू कर लें डॉक्यूमेंटेशन को, तो और अच्छे से ज़्यादा समझ आ जाएगा। और ये कि अब तक जितना पड़ा उसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करना शुरू करें, लूप्स लगाएं, टू डू एप्लीकेशन अब तो बन जाएगी आराम से, टू डू एप्लीकेशन बनाए छोटी सी। सो ये कि ये बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए आने वाले दिनों में। तो हैश मैप्स क्या होते हैं कि, और वैल्यूज़ वेक्टर्स क्या होते हैं कि वेक्टर्स किस तरह यूज़ होते हैं, एरेज क्या होती हैं, और ये सारी चीज़ें जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर रहे होंगे। सो आई होप यू हैव लाइक दिस वीडियो, आपको अच्छी लगी होगी ये वीडियो, आपको ये प्रॉपर समझ आया होगा। अगर कोई चीज़ समझ नहीं है तो यू कैन रीच आउट टू मी ऑन माई सोशल्स, और कॉमेंट, drop anything or drop your queries in comment box. So see you in next video. Bye.